चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे बताओ, होमवर्क क्वेश्चंस में कोई डाउट्स? यस, होमवर्क क्वेश्चन में कुछ डाउट? डू यू वांट एक्सप्लेनेशन फॉर एनी क्वेश्चन? टेल मी। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए? टेल मी, टेल मी, टेल मी। यस, पक्का? एवरीवन क्लियर्ड विथ एवरीथिंग? वॉइस ब्रेक हो रही है? यस। ओहो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम होमवर्क। क्या? ओके, एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम होमवर्क। ठीक है, विल सी व्हाट इज दैट। दिस वन। ओके, क्या दिया हुआ है? LHS एंड RHS। ओके, LHS एंड RHS। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल टू, मैंने पहले क्या बताया? एक्सपैंड करो। A इंटू A minus A into B plus B into A. Don't change the order. If it is B into A, write B into A only. Minus B into B. How much is this? A square minus AB plus BA minus B square. Okay? तो फिर और हम लोगों को क्या दिया हुआ है? ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज गिवन टू यू एज A plus B, A minus B is equal to A square minus B square. When is this possible? When is this possible? This is possible only when this is equal to 0. That is minus AB plus BA is equal to 0 as in null matrix. Okay? Null matrix. जब ये null matrix होगा तभी जाके A square and minus B square same होगा ना? मतलब this expression is equal to this only if this is 0. And that is null matrix. तो ये null matrix के साथ मैंने equate कर दिया, तो BA is equal to AB. What is B? Minus 1, x, y, and 2. Minus 1, x, y, and 2. What is A? 2, 6, 3 minus 4. What is A? 2, 6, 3 minus 4. What is B? Minus 1, x, y, 2. Getting? Any doubt till this point? I'll have to multiply these things. First row, first column. Minus 2 plus 3x. Again, first row, second column. Minus 6 plus 4x. है ना? Then, second row, first column, 2y plus 6. Then, second row, second column, 6y minus 8 is equal to, again, first row, first column, minus 2 plus 6y. First row, second column, 2x plus 12. Then, second row, first column, minus 3 minus 4y. Second row, second column, 3x minus 8. है ना? ओके, तो फिर इक्वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को. इक्वेट दीज टू बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. By equality of matrices. Okay, so what it would be? Yes, minus 6 plus 4x is equal to 2x plus 2. So क्या हो जाएगा? ये 2x को शिफ्ट कर दो. 4x minus 2x minus 2 plus 2 plus 6. 2x equal to 8. So x equal to 8 by 2. So x equal to what? 4. X equal to what? 4. Any doubt? Yes. So x equal to 4 हमें मिल गया. अब ये दोनों को इक्वेट करते हैं. Okay, again by equality of matrices, what I am having
2y plus 6 is equal to minus 3 minus 4y. 4y को शिफ्ट कर दो, 2y plus 4y. 6 को शिफ्ट कर दो, minus 3 minus 6. How much is this? 6y equal to minus 9. So y equal to how much? Minus 9 by 6. 3 3s are 3 2s are, y is equal to minus 3 by 2. खुद से कोशिश करनी है. अगर खुद से कोशिश नहीं की, नहीं सॉल्व करते आ रहा है, प्लीज चेक योर कॉन्सेप्ट्स. ओके, कॉन्सेप्ट्स चेक करो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है? ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. 0 0 गलत है. सेकंड का आंसर 0 0 आया तुम्हारा श्रावणी. यस, या फर्स्ट का बोल रहे, क्या आया किसका 0 0? मेरे हिसाब से 0 0 तो नहीं आना चाहिए. You shouldn't get 0 0. Okay, I'll go with first का explanation. First का भी explanation चाहिए किसी किसी को. Yes. क्या है हमारे पास? देखो जरा, a minus b into a minus b. Okay. It's minus 6 plus 4x equal to 2x plus 12. Where? Here in this question. Minus 6 minus 4x. ओहो, अब सही है ना? minus 4x, तो ये हो गया 6. अब सही है कि एक बार चेक करो? यस, थैंक्स फॉर. यस, अब सही है. It shouldn't be minus 6x, right? It should be plus 6x, no? If you're, are you talking about this element? This first row and second column, minus 6 minus 4x, it shouldn't be minus 6x. And then here, again, first row, second column, it's 2x, हाँ 12, यहाँ पे 12 चाहिए. Yes, 12. So it should be 12, here it should be 18, so it should be 3. अब सही है सब? ओके, ठीक है. और कुछ? और कुछ? और कुछ? y का वैल्यू सही है? y का वैल्यू सही है? यस, मैच हो रहा है y का वैल्यू तुम्हारे साथ? ओके, नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन. This a minus b into a minus b, it is what? A into a, this is what? Minus a into b, b into a plus b into b is equal to a square minus ab minus ba plus b square. And what I am having? I am having a minus b whole square is equal to a square plus b square. When is this possible? When this is equal to null matrix. When is this possible? When this is equal to null matrix, right? So minus ab minus ba is equal to o. Okay, o. तो क्या हो जाएगा फिर? Minus ab is equal to ba. Now a के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, हाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर ही तो दिया था, सही तो है. a माइनस बी होल स्क्वायर ही तो दिया था, सही तो है, वही तो किया है ना. a माइनस बी इंटू a माइनस बी किया ना मैंने. a माइनस बी इंटू a माइनस बी, सो इट्स a इंटू a इंटू माइनस b इंटू a, b इंटू b. Okay, so this should be 0. Only in that case, this a square and this b square will be
इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, सो कब होगा ये? जब ये नल मैट्रिक्स होगा. नल मैट्रिक्स है मतलब जीरो है ना. यस, तो मैंने शिफ्ट कर दिया उसको, प्लस हो गया ये. अब एक ही जगह पे वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को. ओके, आई यूज डिफरेंट कलर सो दैट वो मिक्स अप नहीं हो जाएगा उसमें. मिक्सिंग नहीं होना चाहिए ना इसमें. यस, a is what? 2a, 2b, 5 minus 5 minus 2, 2 equal to b is what? 5 minus 5 minus 2, 2. A is what? 2a, 2b. Okay, minus sign is there, don't forget that. Chalo, first row, first column, 10 minus 2a. First row, second column, minus 10 plus 2a. Second row, first column, 10 minus 2b. Second row, second column, minus 10 plus 2b. Equal to first row, first column, 5 into 2, 10 minus 5 into 2, 10. First row, second column, 5 into a, 5a minus 5b. Second row, first column, minus 2 into 2 minus 4, 2 into 2 plus 4. Second row, second column, minus 2a plus 2b. Yes, यही आ रहा है तुम लोगों का भी या फिर कुछ और आ रहा है? अगर कुछ और वैल्यू आ रहा है तो प्लीज टेल मी. अब ये साइन अंदर एब्जॉर्ब कर दो, ये माइनस साइन जो है वो अंदर एब्जॉर्ब कर दो. एब्जॉर्ब करना मतलब सारे साइंस उल्टे करना. ओके, तो ये माइनस 10 हो गया, प्लस 2a हो गया, प्लस 10 हो गया, माइनस 2a हो गया, माइनस 10 प्लस 2b, प्लस 10 माइनस 2b. ये कितना हो गया? 0. दिस इज 5a minus 5b. 0 minus 2a plus 2b, and these two are equal. Now this and this equal. तो कितना हो गया फिर? 2a equal to minus 10, a equal to minus 10 by 2. So a equal to how much? Minus 5. कहीं पे कुछ गड़बड़ है क्या? Let me check once. 5 minus 5, 2 to AB. Let me check. 2 into 5, 10. This is minus 2A. Okay, then 2 into minus 5, minus 10. This is 2A. Then this is 2 into 5, 10, minus 2B, minus 10 plus 2B. Okay, next. सही तो है ना? minus 10 plus 2B, 5, 10 minus 2A into minus 5 minus 10, 2 into 5, 10 minus 2B minus 10 plus 2B. यहाँ पे क्या सीन है देखो जरा. 5 2 minus 10, 5A minus 5B minus 4 plus 4 minus 2A plus 2B. ओके, अब देखते हैं यहाँ पे minus 10 plus 2A. अब सही है, तो यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा. ओके, नाउ b के साथ मैच करते हैं इसको. minus 10 plus 2b equal to 0, 2b equal to 10, b equal to 5. यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना बाकी है. by what? Equality of matrices. Equality of matrices. Yes, cleared with the doubts now? जिनको भी doubts थे इसमें, cleared with the doubts. easy था. ओके, अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके, अब चलते हैं
ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं हम लोगों को. ओके ओके श्रावणी, तेरा डाउट क्या है? ए स्क्वायर माइनस, नो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. सी मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? जस्ट look at this. See what I had told you. You can't write down minus 2ab here. माइनस 2ab कब लिखोगे तुम लोग? यही मैंने लास्ट क्लास में बताया था. a minus b into a minus b is what? A square. This is what? Minus ab. This is what? Minus ba. This is what? Plus b square. अगर हमारे पास नॉर्मल नंबर्स है, अगर हमारे पास नॉर्मल नंबर्स है, तो इन दैट केस वी कैन राइट दिस एज माइनस 2ab. बट अगर हमारे पास नॉर्मल नंबर्स नहीं है, हमारे पास मैट्राइसेस है, तो तुम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर रूल दीज टू थिंग्स मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल. That is why you cannot write it as minus 2ab in case of matrices. Okay, by coincidence में भी आंसर सेम भी आ रहा होगा तो भी वैसा मत करो. Okay, it's wrong thing. AB and BA 3 into 4 is equal to 4 into 3. That is okay. लेकिन in case of matrices compulsory नहीं है that A into B is equal to B into A. Okay, matrix multiplication is not commutative. Okay, remember these things. Okay, so अब चलते हैं next topic की तरफ, transformation of or else I'll write it as matrix transformations. Transformation on matrices. Okay, अभी पहली बात तो एक चीज याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशंस. मैट्रिक्स इज व्हाट? अरेंजमेंट. उसका वैल्यू होता है? नो, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है. मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? हम लोग मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग एक अरेंजमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. मतलब हम कुछ एक और इक्विवेलेंट अरेंजमेंट बना रहे हैं. Equivalent I am saying, not equal. I am saying equivalent. Okay, so matrix transformation means what? Matrix को transform करना into some other matrix. Okay, by certain operations. तो वो कौन से operations तुम लोग कर सकते हो to change its arrangement or to get its equivalent arrangement? What all changes we can make is we are going to see under this topic. Okay, what changes or what operations I will have to follow if I want to transform the matrix, given matrix, into equivalent matrix. I am not saying equal matrix, I am saying equivalent matrix. Okay, equivalent and equal में difference है. Okay, equivalent and equal में difference है. अब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज कहाँ पे होते हैं? टू गेट दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन. मतलब लाइक मेरे पास सपोज ऐसा कुछ सिस्टम है, 2x, suppose 2x plus 3y plus 4z plus 5w equal to 10. ऐसे मेरे पास 3x plus 4y plus 8z plus 7w is equal to 15. ऐसे मेरे पास 4 इक्वेशंस है और मुझे फाइंड आउट करना है x, y, z, w का वैल्यू. तो उस केस में मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कई बार यूज होता है. अभी हमारे टेक्स्ट बुक में या फिर ऑन पेपर 4 वेरिएबल्स का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ उसको 3 पे लिमिट करने वाले हैं. तो क्योंकि ऑन पेपर ये सब करना मुश्किल होता है. अगेन आई एम टेलिंग यू, मैट्रिक्स ऑन पेपर बहुत कम जगह पे यूज होता है. देयर आर सो मेनी लॉट मेनी सॉफ्टवेयर्स, काइंड ऑफ कोडिंग इज यूज्ड फॉर द मैट्रिक्स डिजाइनिंग. ओके, सो वहां पे ये ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है टू गेट दी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ओके, सो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टू गेट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बाय परफॉर्मिंग some operations.
ओके अब ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं देखो, मतलब देखो, फर्स्ट ऑपरेशन इज इंटरचेंजिंग रो कॉलम्स। हाँ, अभी ये जो इंटरचेंज होगा वो दो रो के बीच में ही होगा या फिर दो कॉलम के बीच में ही होगा। रो एंड कॉलम के बीच में इंटरचेंज नहीं होगा। ओके एक तो दो रोज के बीच में होगा या फिर दो कॉलम्स के बीच में होगा। ओके रिप्रेजेंट करते हैं CI CJ या फिर RI RJ। समझ में आएगा एक एग्जांपल लेने के बाद? आई टेल यू हाउ टू अप्लाई दिस। सपोज मेरे पास A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके तो सपोज मुझे परफॉर्म करना है C1 इज इंटरचेंज्ड विद C2। इसका मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को क्या करना है? इंटरचेंज करना है। विच आर माय कॉलम 1 एंड कॉलम 2? यस दिस इज माय कॉलम 1 एंड दिस इज माय कॉलम 2। ओके दोनों को क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इक्वल टू नहीं बोलेंगे, उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। यस तो इंटरचेंज किया 2 5 8 1 4 7 3 6 9। ओके 3 6 9 2 5 8 1 4 7। क्या किया मैंने? इन दोनों को इंटरचेंज किया। कहां से पता चला? ये इंस्ट्रक्शन से पता चला। ओके सिमिलरली अगर मुझे परफॉर्म करना है रो का इंटरचेंज, ओके इसी मैट्रिक्स का बोल रही है, पहले कॉलम किया अब हम इसका रो करेंगे। जनरली कॉलम एंड रो मिक्स नहीं करते हम लोग, जनरली कॉलम एंड रो मिक्स नहीं करते हैं हम लोग। ओके सी ये नोटेशंस तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए है, ऐसा कुछ नहीं चलो आई अभी जे आई कैसे कॉलम के लिए यूज किया, हाँ ऐसा मत सोचो। ठीक है दिस आर जस्ट फॉर इंडिकेट, मतलब नोटेशंस। ये तुम लोगों को नहीं भी याद रखना है, तुम लोगों को इंटरचेंज क्या होता है पता चला ना तो भी बहुत है। ये अपने कन्वीनियंस में कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने इंडेक्स लिया इसका कुछ LM या फिर यहाँ पे लिया मैंने JK, कुछ भी ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ पे बस उनको ये बताना है कि दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, दो रोज आपस में इंटरचेंज हो सकती है, लेकिन कॉलम एंड रो आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। ओके चलो अब रो का एक एग्जांपल लेते हैं R1 and R3. What is R1 and what is R3? Yes, look at this. Which is R1? This is R1. Which is R3? This is R3. Interchange these two. Interchange these two. 3 को 1 के जगह पे, 1 को 3 के जगह पे। तो A का इक्विवेलेंट मैंने इक्वल टू लिखा नहीं, मैंने इक्विवेलेंट लिखा। 1 के जगह पे 3 7 8 9 सॉरी 4 5 6 1 2 3 हो गया इंटरचेंज। यस मैंने क्या बोला? जनरली कॉलम के ऑपरेशंस एंड रो के ऑपरेशंस हम लोग मिक्स नहीं करते हैं। ओके कॉलम के ऑपरेशंस अगर तुमने कॉलम के ऑपरेशन से स्टार्ट किया तो रो का ऑपरेशन उसमें जनरली नहीं यूज करते, बिकॉज फिर वो बहुत ऐसे काइंड ऑफ केओस हो जाता है। देयर इज नो सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, देयरफॉर वी डोंट डू दिस। ओके कॉलम एंड रोज को मिक्स नहीं करना है, एक तो कॉलम करो या फिर रोज करो। ठीक है दैट इज द वे। सो ये हो गया अपने पहला ट्रांसफॉर्मेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स। अगेन मैंने अगर किसी ने तुम लोग को पूछा C2 एंड R3 को चेंज करके बताओ, नहीं करते नहीं आएगा। ओके C2 एंड R3 हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी बिटवीन 2 rows और 2 columns. It has to be, yes it has to be between 2 columns and 2 rows. Okay now next, this is interchanging rows and columns. Now next
multiplying row by नो यस एक डाउट आया है व्हाई डू वी कॉल देम एज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स सी जैसे मान के चलो मैंने सपोज यहाँ पे अभी थोड़ा रिलेट मत करना एकदम एग्जैक्ट रिलेट मत करना सपोज आई से दीज आर दी प्राइसेस ऑफ पेंसिल्स these are the prices of pen or else erasers these are the prices of pens suppose ये जो क्या बोलते हैं मार्केट वन की प्राइसेस है मार्केट 2 की प्राइसेस है मार्केट 3 की प्राइसेस है तो सॉरी दिस वाज नॉट ओरिजिनल मैट्रिक्स आई एम सो सॉरी दिस वाज ओरिजिनल मैट्रिक्स ना जस्ट वेट I'll put complete scenario in front of you. These are what? Pencil के prices. These are eraser के prices. These are pen के prices. These are the prices in market 1, market 2, market 3. See, matrices are not different. I am just changing market 2 in place of market 1 and market 1 in place of market 2. और कुछ हम लोग कर रहे हैं क्या? नहीं. We are just changing its arrangement. Okay, we are just changing its arrangement so that whenever I will be multiplying, suppose यहाँ पे कोई quantity का matrix है, तो मैं जब multiply करूंगी तो major effect नहीं आएगा कुछ. जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली मार्केट 1 का पेंसिल का प्राइस मल्टीप्लाई होगा आई मीन मार्केट 1 का पेंसिल का जो प्राइस है वो पेंसिल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा मार्केट 2 का पेंसिल का जो प्राइस है क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा इरेजर का तो ऐसे इस तरीके से वो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है दैट इज व्हाई मैट्रिक्स एक्चुअली बहुत चेंज नहीं हुआ है वो सिर्फ क्या कर रहा है मार्केट 2 के जगह पे कौन आया है मार्केट 1 एंड मार्केट 1 की जगह पे क्या आया है मार्केट 2 so even though I perform further operations I won't get much difference I'll just get these values as your market 1 values these values as market 2 and these values as market 3 ये मुझे पहले मिलते थे अब मुझे यहाँ पे market 2 के वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पे market 1 के मिलेंगे और यहाँ पे market 3 के मिलेंगे nothing is different okay therefore we call them as equivalent matrices okay क्योंकि उसमें हम कुछ major differences नहीं कर रहे हैं like changing its row and column ऐसा कुछ हम लोग difference नहीं कर रहे हैं okay so that further operations उससे affect नहीं होते हैं इसलिए हम उसको different नहीं बोलेंगे equivalent बोलेंगे okay yes multiplying row by a scalar अब ये कहाँ पे यूज होता है जैसे मान के चलो सपोज मैंने बोला पेंसिल का प्राइस जो है वो अभी दुगना हो गया है तो व्हाट आई विल डू will I change the complete arrangement no what I will do I'll just multiply this row by 2 so that my further applications further operations affect नहीं होंगे ओके समझ में आया इक्विवेलेंट क्यों है क्योंकि एक रो में चेंज लाने की वजह से मेरा पूरा सिनेरियो कंप्लीटली चेंज होता है क्या नहीं ओके सो देयरफॉर वी कॉल देम एज इक्विवेलेंट मैट्रिसेस बट नॉट इक्वल एंड नॉट डिफरेंट ओके सो मल्टीप्लाइंग रो बाय ए स्केलर रो और कॉलम बाय ए स्केलर ओके रो और कॉलम बाय ए स्केलर तो जैसे मान के चलो आर आई है उसको हमने चेंज किया k इंटू आर आई में या फिर सी जे है तो उसको हमने चेंज किया k इंटू सी जे में मतलब उस पर्टिकुलर रो को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय सम कांस्टेंट उस पर्टिकुलर रो को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय सम कांस्टेंट ओके सो लेट्स से आई एम हैविंग ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and I want to perform operation as what
R1 is change, R1 बहुत हो गया, R2 को लेते हैं, R2 is changed to 3R2. You can also write just 3R2, ऐसे भी लिखते हो, एक तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ओके. जनरली यही फॉलो करना, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में फॉलो किया है. Look at this. हाँ देखो 4R2, सिर्फ 4R2 लिखा है, ओके. Whenever I was in 12th standard, we used to write it like this, okay, because R2 is changed to 3R2, ये उसका सिग्निफिकेंस है. तो ये भी चलता है, ये भी चलता है, but it is this there in your textbook, so follow that, okay. So R2 में चेंजेस होंगे, क्या होंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, yes. Again, I'm not going to write it as equal. I'm going to write it as equivalent. So R1 as it is, R2 को change कर दो, 3 into, yes, R2 किससे multiply हो रहा है, 3 से multiply हो रहा है, 3 into 4, 12, 3 into 5, 15, 3 into 6, 18, 7 as it is, 8 as it is, 9 as it is. Okay, any doubt to anyone? Yes. Now I am having B matrix, let's say. It is -1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, -1, 8. Let's say C3 is changed to -3 या फिर -2 C3. Yes, या फिर तुम कैसे लिख सकते हो इसको, -2 C3. ओके, दोनों में से कैसे भी लिखो, लेकिन सेकंड वाला इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, सो फॉलो सेकंड वाला. मैंने बोला मैं 11th 12th में थी तब हम लोग ये फॉलो करते थे, ओके, बिकॉज इट वाज इजी टू इंटरप्रेट. ठीक है, रेडी. सो बी इज इक्विवेलेंट टू C1 में कुछ चेंजेस, नो. C2 में कुछ चेंजेस, नो. C3 is multiplied by -2. This is -4. This is -10. This is -16. Any doubt to anyone? Yes. Any doubt to anyone? Getting this part? Yes. -2 से किसको मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, कॉलम को मल्टीप्लाई किया. किसको मल्टीप्लाई किया है, कॉलम को मल्टीप्लाई किया है. C3 कौन सा है, C3 ये है. So 2 into 2, okay. Then this is 2 into 5. Then this is 2 into 8. Getting my point? Yes. R2 मतलब मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया. C3 मतलब मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया. एनी डाउट, कुछ डाउट हो तो पूछ लो. सो मल्टीप्लाइंग ए रो और ए कॉलम बाय स्केलर इज डन इन दिस वे. ओके, सो यस. अब चलते हैं थर्ड ऑपरेशन की तरफ. थोड़ी देर बाद मैं तुम लोगों के एग्जांपल्स दूंगी जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी तीनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा, ओके. ऐसा कुछ ऑपरेशन मैं तुम लोगों को अप्लाई करने को बोलूंगी, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3. मल्टीप्लाइंग a row or a column by scalar and adding it to another row or column respectively. Okay, respectively. Yes. वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा. यस. ओके, बहुत सारे नोज आए हैं मेरे पास. हाँ, तो जिनकी तरफ ब्रेक हो रहा है प्लीज चेक इट आउट. ओके,
yes, actually it is issue, there is an issue on your side only, ठीक है, because बाकी सबका तो नो आया। अपूर्वा तेरा नेटवर्क तो यार हमेशा डाउन रहता है, आज भी एयरटेल यूज कर रही है क्या तू? हाँ जियो यूज कर रही है, मेरा भी जियो है यार आज तो, मुझे तो अच्छा रेंज है फिर। ओके ओके, बताती हूँ डेफिनेटली, फर्स्ट से फिर से एक बार एक्सप्लेन होगा, डोंट वरी। So multiplying a row or a column by a scalar and adding it to another row or column respectively, मतलब तुम लोग अगर रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली दूसरे कोई तो भी रो में ही ऐड करना पड़ेगा। तुम लोग अगर कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली दूसरे कोई तो भी कॉलम में ही ऐड करना पड़ेगा। अगेन रो एंड कॉलम ऐड नहीं हो सकते हैं। ओके, रो एंड कॉलम ऐड नहीं हो सकते हैं। ओके, लुक एट दिस नाउ, इसको थोड़ा सा ज्यादा एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। लुक एट दिस, लेट्स टेक सम, ओके, सपोज R1 में Ri is changed such that Ri में, मेरे वर्डिंग्स की तरफ ध्यान दो, Ri is changed such that Ri में ऐड हुआ है K into Rj। चेंजेस किस में हो गए? Ri में चेंजेस हुए हैं। कौन मल्टीप्लाई हुआ है? कोई तो भी और रो मल्टीप्लाई हुआ है। किससे मल्टीप्लाई हुआ है? स्केलर मतलब कांस्टेंट, मैंने पहले बताया था, स्केलर मतलब कांस्टेंट। सपोज मान के चलो कॉलम Cj कॉलम J में चेंज हो रहा है, सच दैट Cj में कोई तो भी स्केलर मल्टीपल ऑफ दूसरा कॉलम ऐड हो रहा है। समझ में आएगा, डोंट वरी। इफ k is equal to 1, what can I say? Ri is equal to Ri plus Rj। Ra में आके Rj ऐड हो रहा है, Ri में आके Rj ऐड हो रहा है, मतलब Ri सेम है। Ri सेम एज इन Ri अपनी जगह पे है और इस Ri में ये ऐड होगा, सो दैट ये दोनों सेम रहेंगे। वेट, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। k is equal to 1 है तो क्या हो जाएगा? Cj is changed to Cj plus Ci। देखो अभी एग्जाम्पल, मेन पार्ट एग्जाम्पल। चेंजेस किस में हो रहे हैं? चेंजेस Ri में हो रहे हैं, जिसमें एडिशन हो रही है उसमें चेंजेस यहाँ पे किस में हो रहे हैं? Cj में हो रहे हैं, मतलब जिसमें एडिशन हो रही है उसमें चेंजेस। ओके, देखो फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज ए मैट्रिक्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूं, R2 प्लस 3R1। R2 में कौन ऐड हो रहा है? 3R1 ऐड हो रहा है, मतलब चेंजेस किस में होंगे? R2 में चेंजेस होंगे। चेंजेस किस में होंगे? R2 में चेंजेस होंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो R1 एंड R3 सेम, R1 and R3 same, R1 R3 same। चेंजेस किस में हो रहे हैं? R2 में। कैसे चेंजेस हो रहे हैं? R2 में कौन आके ऐड हो रहा है? देखो जरा, R2 में प्लस 3 इंटू R1 प्लस 3 इंटू R1 प्लस 3 इंटू R1। समझ में आई बात? यस, तो ये इक्वल टू नहीं है, एक्चुअली इक्विवेलेंट है। समझ में आया? R2 में 3R1 ऐड हो रहा है, सो R1 में कोई चेंजेस नहीं, R1 एज इट इज। R3 में कोई चेंजेस नहीं, R3 एज इट इज। तो R2 में कौन ऐड हो रहा है? 3 इंटू R1, सो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। ओके, सो कितना है फिर ये मैट्रिक्स? लेट्स सी how much is this? 1 2 3 7 6 and 5 11 9 and 6 15 7 8 9।
7, 8 एंड 9। अब तुम ऐसे कितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही ऑपरेशन कर सकते, नहीं। इसी मैट्रिक्स पे कंटिन्यूएशन में कुछ भी ऑपरेशन, अभी जैसे मान के चलो सपोज मैंने नेक्स्ट ऑपरेशन किया R3 प्लस R2, चेंजेस किस में होंगे? R2 R3 में होंगे। R2 विल बी एज इट इज। अभी देखो तुम लोग, तुम्हारे बुक में ये नोटेशन फॉलो किया है। हम लोग क्या करते थे 11 12 में थे तब, हम लोग जब 11 12 में थे तब हम लोग इस तरीके से करते थे, तो समझ में आता था कि R2 में चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारे बुक में जो नोटेशन यूज किया है ना, वो ऐसे किया है, तो समझ में नहीं आता है जल्दी। हम लोग कैसे नोटेशन करते थे, R3 इज चेंज टू R3 प्लस R2, तो हमें समझ में आता था कि क्या R3 में चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी तुम लोगों को वो दिमाग में लाना है कि ये जो एलिमेंट है इसमें चेंजेस होते हैं, ये जो एलिमेंट है इसमें चेंजेस होते हैं। ओके, देखो वैसे ही वो इसमें भी वही किया है उन्होंने, साइंस वालों की टेक्स्ट बुक में भी यही है, ऐसे ही किया उन्होंने। लिखा ही नहीं है वो R2 सच दैट, R3 सच दैट, नहीं लिखा है वो। ठीक है, सो हम भी नहीं लिखेंगे फिर, ऑब्वियसली बोर्ड को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो बताओ फिर चेंजेस किस में है? R3 में चेंजेस हो रहे हैं, तो R1 एज इट इज, R2 एज इट इज। चेंजेस किस में होंगे? R3 में होंगे। क्या चेंजेस होंगे? R2 ऐड हो जाएगा, R2 को ऐड कर दो फिर, 7 प्लस 11 प्लस 15 है ना, प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15, तो फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 7 11 15 6 14 19 24। Understood? Yes, n number of operations you can perform. n number of operations. तुम पहले वाले इंटरचेंज वाले ऑपरेशंस भी इसमें ला सकते हो। ओके, कंटिन्यूएशन में ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस तुम लोग कर सकते हो। ओके, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट वी विल हैव टू कैरी ऑन। ओके, यहाँ पे जस्ट यू शुड नो दैट हाउ टू परफॉर्म दी ऑपरेशन। ओके, मैं और एक मैट्रिक्स दे रही हूँ तुम लोगों को, you will have to perform the operation. Okay, एक मैट्रिक्स देती हूँ तुम लोगों को, try to perform the operations. B is equal to -1 2 3 4 5 6 0 1 -2। अभी फिलहाल मैं रो वाले ही देख रही हूँ, रो वाला का एक रो वाले का प्रैक्टिस कर दो, फिर कॉलम वाला लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर मैं फिर से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी राइट फ्रॉम द इंटरचेंज एंड देन वी विल सॉल्व मिक्स्ड क्वेश्चंस। ओके, R1 प्लस 8 R2 परफॉर्म करना है। फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसमें तुम लोगों को R3 माइनस 3R1 परफॉर्म करना है। फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसमें तुम लोगों को R1 प्लस R2 परफॉर्म करना है। चलो टेल मी कितना हो सकता है आंसर? चलो लिखो, देखो फाइनल मैट्रिक्स का आंसर क्या हो सकता है। चलो कोशिश करो। हाँ, जैसे जैसे अभी तुम लोगों को प्रैक्टिस होगी ना, वैसे वैसे ये स्टेप जो है हम ऑपरेशन का जो दिखा रहे हैं वो स्टेप स्किप करते जाना है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे। हाँ, पर अगर उन्होंने सिर्फ ऑपरेशन शो करो बोला है तो दिखाया करो ये स्टेप, लेकिन कुछ और फाइंड आउट करना है, जैसे कि इनवर्स फाइंड आउट करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो ये सब चीजें जो है ना वो मत शो करो, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन शो करना है तो ऑब्वियसली ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ट्राई इट आउट फटाफट। आया पहला मैट्रिक्स? गुड 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 गुड।
आया आंसर? प्लस माइनस का जोड़ है थोड़ा सा, जो दो आंसर्स मेरे पास आए उसमें। चलो लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। ओके, B इज इक्विवेलेंट टू, चेंजेस किस में होने वाले हैं? R1 में होने वाले हैं, तो R1 को वैसे ही रखो, सॉरी R2 R3 को वैसे ही रखो। 4 5 6 0 1 -2। R1 में क्या चेंजेस होने वाले हैं? देखते हैं जरा R1 में क्या चेंजेस होने वाले हैं। प्लस 8 इंटू R2 प्लस 5 इंटू, सॉरी 8 इंटू R2 plus 8 into R2. Understood? Yes. Such that, what is this? 32 minus 1, 31. 40 plus 2, 42. 48 plus 3, 51. This is 4, 5, 6, 0, 1, minus 2. पहला मैट्रिक्स सबका सही आया? Yes. Okay. नेक्स्ट R3 में चेंजेस होने वाले हैं, है ना? तो R1 R2 सेम, दैट इज 31 42 51। कंटिन्यूएशन में करना है सारे, हाँ, मतलब इस पे ही नेक्स्ट ऑपरेशन करना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स पे नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है? तो फिर 31 42 51 R1 एज इट इज, R2 एज इट इज। चेंजेस किस में होने वाले हैं? R3 में होने वाले हैं, तो लेट्स राइट आउट। R3 में क्या चेंजेस होंगे? R3 minus 3 into R1 minus 3 into R1 minus 3 into R1। तो कितना आया फिर ये? Yes, how much is that? Let's see. 31 42 51 4 5 6 और ये कितना आया? -63, सॉरी 93, है ना? यहाँ पे कितना आया? 1 माइनस 6, मतलब -125। ये कितना आया? -2 -3 153, मतलब ये कितना आया? -155। यस, -155। अब नेक्स्ट, यस, समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब R1 में R2 ऐड करना है, तो R2 में कोई चेंजेस नहीं, R3 में कोई चेंजेस नो, -125 -155। R1, what is R1? 42 51। R1 में कौन ऐड होगा? R2 ऐड होगा, प्लस R2 R2 R2। Okay, so what it would be? 35 47 57 4 5 6 -93 -125 -155। Yes, understood? पक्का? कुछ डाउट हो तो पूछ लो। अब एक बार सारे ट्रांसफॉर्मेशंस रिवाइज करते हैं, ठीक है? सारे ट्रांसफॉर्मेशंस एक बार रिवाइज करेंगे, क्या क्या किया है हम लोगों ने, राइट फ्रॉम दी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट? टू गेट एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बाय परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस, और यू कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेशंस टू बी स्पेसिफिक। ओके, तो कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस है? सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन टू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। ओके, एक तो रो को चेंज करो या फिर कॉलम को चेंज करो, मतलब दो कॉलम्स को इंटरचेंज करो। तो एक तो मैं रो में चेंज कर सकती हूँ या फिर कॉलम में चेंज कर सकती हूँ, मैं रो और कॉलम इंटरचेंज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? तो मैंने
जैसे यहाँ पे C1 एंड C2, मतलब C2 के जगह पे आएगा C1, C1 के जगह पे आएगा C2, C2 के जगह पे आएगा C1, C1 के जगह पे आएगा C2। तो C1 एंड C2 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों को मैंने क्या किया, इंटरचेंज। 258 यहाँ पे आया, 147 यहाँ पे आया। देन R1 एंड R3 में इंटरचेंज करना है, मतलब R1 के जगह पे जाएगा R3, R3 के जगह पे जाएगा R1। तो R3 एंड R1 1 2 3 आएगा यहाँ पे, 7 8 9 आएगा ऊपर। अंडरस्टूड? इंटरचेंज मतलब क्या है, इन दोनों की जगह आपस में चेंज करनी है, दैट्स इट। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग रो और कॉलम बाय ए स्केलर, मल्टीप्लाइंग रो और कॉलम बाय ए स्केलर। स्केलर मतलब कांस्टेंट, ओके, स्केलर मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो फिर कांस्टेंट मतलब देखो यहाँ पे, सपोज Ri इज चेंज्ड इनटू KRI। सो जैसे मान के चलो R2 में चेंजेस करने हैं, R2 इज चेंज्ड टू 3R2। मैंने इसको बोला तुम लोग ऐसे लिखा करो बिकॉज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये फॉलो किया है, ओके। सो 3R2 मतलब R2 में क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। R1 में कोई चेंज, नो। R3 में कोई चेंज, नो। C3 -2 C3 मतलब कॉलम 3, तो कॉलम 3 में क्या हो जाएगा, -3 से -2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, -2 इंटू -18, मतलब C3 इंटू -2, इसका मतलब कॉलम 3 में चेंजेस होंगे। R2 इंटू 3, इसका मतलब रो 2 में चेंजेस होंगे। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, multiplying a row or column by a scalar and adding it to another row or column respectively. Okay, मतलब क्या है, देखो जैसे कि मान के चलो 3R1 को पहले 3R1 परफॉर्म किया है ना, बेसिकली हम लोग करते क्या है, 3R1 करते हैं देन उसको R2 में ऐड करते हैं ना, जस्ट वी डोंट शो इट, दैट्स द रीजन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर देखते हैं जरा। पहला जो मैट्रिक्स है उसमें R2 प्लस 3R1 बोला है, इसका मतलब चेंजेस किस में होंगे, चेंजेस होंगे R2 में। R1 विल बी एज इट इज, R3 विल बी एज इट इज, चेंजेस किस में होंगे, R2 में होंगे। तो मैंने R1 R3 को सेम रखा, R2 में चेंजेस किए एज पर दिस। देन R3 सेम रहा, R2 को उसमें, सॉरी R3 में चेंजेस हो गए, R1 एंड R2 सेम रहा, तो R1 सेम, R2 सेम, R3 में चेंजेस। ओके, अब यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ये प्रैक्टिस के लिए दिया था। यस, R1 में चेंजेस होंगे, कैसे होंगे, 8R2 ऐड होगा। ओके, यहाँ पे चेंजेस किस में होंगे, R3 में होंगे, देखो R3 में चेंज हुआ है ना। तो यही तुम लोगों को फॉलो करनी है चीजें। अब एक क्वेश्चन ले लो कॉलम का, ओके, एक क्वेश्चन ले लो कॉलम का, ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट। करना क्या है, या फिर एक ऑपरेशन आई विल शो, ओके, दूसरा ऑपरेशन, आगे के दो ऑपरेशंस उसी मैट्रिक्स में करो, उसी मैट्रिक्स में करो आगे के दो ऑपरेशंस, ठीक है। ओके, लेट्स टेक इट, सपोज सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स नहीं लेते हम लोग, एक्स मैट्रिक्स लेते हैं। -1 2 -3 then -2 4 0 then 3 1 and -2, ये मैट्रिक्स है। ओके, अब चेंजेस हम लोग करने वाले हैं, चेंजेस हम लोग करने वाले हैं C1 प्लस 2C2, C1 प्लस 2C2, चेंजेस किस में होंगे, C1 में होंगे, है ना। तो C2 एंड C3 एज इट इज, C2 एंड C3 एज इट इज। ये क्या है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का साइन देना भूलना मत, इक्विवेलेंट का साइन देना भूलना मत। तो C1 में चेंजेस होंगे, C2 एंड C3 एज इट इज, C2 एज इट इज, C3 एज इट इज। C1 में चेंजेस होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, लेट्स डू इट। प्लस 2 इंटू C2 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 2 इंटू C2, यस, प्लस 2 इंटू C2 किया ना, सेकेंड कॉलम, 2 इंटू C2 2 इंटू C2 2 इंटू
C2. तो क्या हो गया फिर? इक्विवेलेंट -1 + 4. How much is that? +3. This is how much? 2. This is -3. -2 + 8, which is +6. This is how much? 4 and 0. This is how much? 5, 1, -2. ओके, सेम ऑपरेशन करने हैं बट कॉलम में करने हैं, अभी रो में नहीं करने हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग मैं तुम लोग अभी नेक्स्ट ऑपरेशंस देती हूँ। ट्राई आउट एंड टेल मी इट्स आंसर। ठीक है, कंटिन्यूशन में करना है, इसी पे अभी नेक्स्ट ऑपरेशंस होने चाहिए। C2 - 3C3, then next operation should be C3 - C1, एंड उसके बाद वाला ऑपरेशंस ले लो, C1 - 2C2। ओके, चलो ट्राई इट आउट। 3 ऑपरेशंस ट्राई करो, कोशिश करो। Okay, got the answer? Change will be in column 2. Correct. Yes, आ रहा है। अभी थोड़ी आदत लगाओ कि हम डायरेक्टली कर पाए। वो बीच वाला जो इंटरमीडिएट स्टेप है ना, उसको स्किप करने की आदत लगाओ। ओके, सो दैट हमें धीरे धीरे वैसे ही करना है। ठीक है, अभी मैं ये एक कैलकुलेशन विद दैट स्टेप शो करूंगी, आगे के कैलकुलेशन तुम लोगों को विदाउट शोइंग दैट स्टेप करना है। ठीक है, सो ट्राई इट आउट फास्ट। C2, C1 में कोई चेंजेस? नो, C1 एज इट इज। C2 में चेंजेस होने वाले हैं। 2 - 3 into C3, 4 into, sorry, 4 - 3 into C3, 1 - 3 into C3, C3 as it is, C3 as it is। तो कितना हो गया फिर ये? Yes, how much is this? How much is this? It is equivalent to 3. This is how much? 3 3 is 9, na? 9 plus 2, 11. This is how much? -3, 6, 5. 4 minus 0, 4. This is what? 1 plus 6, 7. This is 0 minus 2. Okay? 0 minus 2. Any doubt? कुछ डाउट हो तो पूछो। अब C3 minus C1, C3 minus C1, तो फिर C1 में कोई चेंजेस? नो। C2 में कोई चेंजेस? नो। C3 minus C1 मतलब -3 - 3 -6, 0 - 6 -6, -2 - 5 -7. Got it? C3 minus C1, -3 -3 -6, 0 -6 -6, -2 -5 -7. Any doubt to anyone? Yes, कुछ डाउट है तो पूछो।
अब किस में चेंजेस होने वाले हैं? अब C1 में चेंजेस होने वाले हैं, है ना? सो फॉर रेफरेंस आई विल टेक दिस मैट्रिक्स। तो C2 C3 में कोई चेंजेस? नो। C2 को रखो वैसे ही। C2 11 4 7 -6 -6 -7। C1 -2 C2, C1 क्या था? 3 था। 3 -2 C2, 3 -2 इंटू C2 क्या है? 11। कितना हो गया ये? 3 -22 -19। ओके, -19। एनी डाउट? नेक्स्ट C1 6 -2 into C2 is how much? 4. That is how much? 6 minus 8 is what? -2. 5 -2 into C2. C2 is what? 7. 5 minus 14? -9. Any doubt? कुछ doubt है तो पूछो. Yes. Any doubt? Any doubt? Understood everything? Yes. Okay. अब तीनों ऑपरेशंस को मिक्स कर दूं मैं? तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस, सॉरी, तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस को अब हम मिक्स कर देते हैं. ठीक है? ओके. तो फिर let's take examples. Okay, first matrix is given to you. A matrix -1 2 0 1 2 -1 2 2 1 एंड तुम लोगों को परफॉर्म करना है R1 R2 अगेन. इसके बाद परफॉर्म करना है सीक्वेंस में, ऑब्वियसली सीक्वेंस में. इसके बाद परफॉर्म करना है R2 R3. इसके बाद परफॉर्म करना है R3 -2 R1. ओके, नेक्स्ट B मैट्रिक्स 0 0 1 2 0 1 3 0 3 और एल्स 3 3 0. तुम लोगों को परफॉर्म करना है C1 इंटरचेंज्ड विद C3, C1 -3 C3 or else 2 C2 then C1 C2. Okay, then you have to perform or else C2 -2 C3 ऐसे करते हैं. Okay, then you will have to perform third matrix. You will have to transform third matrix 1 2 3 4 5 -1. Okay, C1 is C1 -2 C2, then C2 and C1 interchanged and C1 minus or else C3 minus C1. ओके, चलो फटाफट बताओ अभी क्या क्या आंसर्स आते हैं. यस, फर्स्ट का आंसर आया होगा. गॉट द आंसर फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स? यस, लेट्स चेक इट आउट. फर्स्ट का आंसर आया. ओके, सेकंड का आंसर आ गया मेरे पास. फर्स्ट का आंसर नहीं आ रहा है. आई मीन
उसी बंदे ने सेकंड का आंसर दिया है। और यू आर टेलिंग मी ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। टेल मी दिस फाइनल आंसर, इसके बाद ये तीनों के बाद कितना आता है। ओके ओके फर्स्ट का फाइनल मैट्रिक्स दिया है, बट दोनों का मैट्रिक्स मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ओके लेट्स सी फर्स्ट का आंसर आई एम डिस्कसिंग। क्या है? -1 2 0 1 2 -1 2 2 1 ओके। और R1 -R2 R2 -R3 R3 -2R1 ओके। ये परफॉर्म करना है हम लोगों को। अब देखते हैं क्या होता है। R1 -R2 पहले परफॉर्म करेंगे। ओके R1 -R2 मतलब चेंजेस किसमें होने वाले हैं? R1 -R2 इसका मतलब चेंजेस होंगे R1 में, है ना। R2 में चेंजेस होंगे कोई नहीं, R3 में चेंजेस होंगे कहीं नहीं। ओके सो R2 ओके I will write it like this R1 -R2 equivalent to ओके R1 में चेंजेस होने वाले हैं। ओके सो R2 लिख लेते हैं R2 R3 okay R3 is how much 2 2 1 R1 minus R2 -1 -1 -2 2 -2 0 this is how much +1 okay this is how much +1 now I am writing it directly I am not writing intermediate steps okay make that habit because आगे हम लोगों को वही फॉलो करना है ओके R2 minus R3 now in this case keep your R1 as it is, keep your R3 as it is. R2 minus R3 is what? -1. R2 minus R3 is 0. R2 minus R3 is -2. समझ में आ रही बात? यस अगर इंटरमीडिएट स्टेप्स चाहिए तुम लोगों को तो आई विल शो। इंटरमीडिएट स्टेप्स अगर चाहिए तो आई विल शो। ओके क्वेश्चंस चाहिए तुम लोगों को। ओके क्वेश्चंस लिख लो यार जल्दी। इंटरमीडिएट स्टेप्स बताने हैं। यस इंटरमीडिएट स्टेप्स बताने हैं क्या? जरूरत है? ये कैसे आया? -2 कैसे आया? -1 -1 से। 0 कैसे आया? 2 -2 से। 1 कैसे आया? 0 माइनस ऑफ -1 से, है ना? आई हैव शोन इट। R2 माइनस R3 कैसे आया है? ये -1 कैसे आया है? यस R2 माइनस R3 दैट इज 1 -2। ये 0 कैसे आया है? 2 -2 से। ये -2 कैसे आया है? -1 से। Okay, last transformation on first matrix is R3 minus 2R1. Okay, I'll show it here. R3 minus 2R1. तो क्या होगा फिर? चेंजेस किस में होंगे? R1 एंड R2 में। -2 0 1 -1 0 -2
R3 माइनस 2R1 मतलब कितना हो जाएगा 6 R3 माइनस 2R1 तो R3 minus 2R1 minus 1. Any doubt in this? Have you got the same thing? Have you got the same thing? Yes. For the first matrix, have you got the same thing? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो. यस, बाद में ये बहुत आगे चला जाता है यार ये टॉपिक, तो फिर तब फटाफट ट्रांसफॉर्मेशंस करने रहते हैं, फिर स्पीड अफेक्ट होता है एंड सिली मिस्टेक्स अलग बात है. Okay, so we have to manage everything, speed, silly mistakes, okay, सब कुछ मैनेज करना है. उसमें कॉन्सेप्ट्स भी है. कॉन्सेप्ट्स इतने डिफिकल्ट नहीं है मैट्रिसेस में, लेकिन जो क्वेश्चंस तुम्हें जनरली पूछे जाते हैं दैट इज ऑन इनवर्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसका सॉल्यूशन. ओके, तो ये जो दो टाइप के क्वेश्चंस है, इनवर्स एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं एंड बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हमें फाइंड आउट करने रहते हैं. तो उस केस में फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी. ठीक है, ओके. इट इज इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम R1 R2. नो, R1 R2 इट इज नॉट इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम. कहाँ पे दिखा तुम्हें? It is not interchange of, it is interchange of column and row. Sorry, column and column. C1, C3, R1, R2. ये R1 ये अलग है और ये अलग है. माइनस है ये, और ये क्या है? डबल साइडेड एरो. यहाँ पे R1 R2 इंटरचेंज होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा. सी द डिफरेंस. यहाँ पे डबल साइडेड एरो है और यहाँ पे माइनस है. ओके, R1 माइनस R2 मतलब R1 में से सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को. समझ में आ रही है बात? यस, डिफरेंस है दोनों में. डबल साइडेड एरो एंड सब्ट्रैक्शन डिफरेंस है. डबल साइडेड एरो मतलब इंटरचेंज, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट क्या है? सेकेंड 001 201. Yes, any doubt you have? Yes, do you have any doubt? Why do we multiply? Why do we apply second transformation on first answer and not on the initial question? Because see, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रूल तो नहीं है whenever you are just learning transformations. बट जब आगे जाके तुम लोग एप्लीकेशंस करोगे इसके इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो उस केस में तुम लोगों को वो समझ में आ जाएगा कि मैं प्रीवियस इस पे ही क्यों अप्लाई कर रही हूँ. बिकॉज एट द एंड मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए रहता है एंड दैट फॉर्मेट इज पॉसिबल ओनली इफ यू आर अप्लाइंग कॉन्सेक्यूटिव ऑपरेशंस. मतलब प्रीवियस स्टेप वाले मैट्रिक्स पे ही अगर ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो ही तुम लोगों को नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगा. ये जो हम लोग जो अभी सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है. बट व्हेन वी विल लर्न इट्स एप्लीकेशंस, इन दैट केस यू विल कम टू नो दैट it is not desirable, I mean it is not you can say suggested to apply the transformation on initial matrix. Okay, because हमें फिर वो पर्टिकुलर फॉर्मेट मिलेगा ही नहीं. ओके, अगर हम इनिशियल मैट्रिक्स पे ही अप्लाई करते बैठेंगे तो. ओके, तो इसीलिए मैं थोड़ा अभी से तुम लोगों को कॉन्सेक्यूटिव ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो अपना सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं उसकी आदत लगा रही हूँ, सो दैट बाद में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो यस, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं फिर. अभी सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट? 001 201 001 201 then 330 एंड हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने हैं. C1 C3 इंटरचेंज, then 2 C2 interchange,
then C2 minus 2C3. C2 minus 2C3. This thing we have to apply. Now look at this. How to apply? Okay. Equivalent matrix. सबसे पहला ऑपरेशन C1 एंड C2 को C1 एंड C3 को इंटरचेंज करना है. तो C1 के जगह पे आएगा C3. ओके, तो 1 1 0. C2 में कोई चेंजेस नहीं. C3 के जगह पे कौन आएगा? C1. दैट इज 0 2 3. ओके, ये हो गया अपना इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. नेक्स्ट ऑपरेशन इज 2C2. इसका मतलब C1 एज इट इज, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 0 0 6. C3 एज इट इज. उसके बाद C2 माइनस 2C3. उसके बाद C2 माइनस 2C3. तो चेंजेस किस में होने वाले हैं? चेंजेस होने वाले हैं C2 में. तो C1 एंड C3, C1 एंड C2 एज इट इज. ओके, तो C1 क्या है? यस, C1 क्या है? एक मिनट. हाँ सही है, ठीक है. C1 इज 1 1 0. C2 में चेंजेस होने वाले हैं -2C3. तो 0 माइनस 2C3 is 0. 0 minus 2C3 is -4. 6 minus 2C3 is 0. Yes, 6 minus 2C3. Now C3 will be as it is. बहुत कंफ्यूजन होता है बाद में जब फ्रैक्शंस आते हैं. ओके, जब फ्रैक्शंस आते हैं तब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं. स्पीड तो अफेक्ट करता ही है. ओके, सो सबको मैनेज करना है. कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, स्पीड भी सही होना चाहिए. ओके, एंड सिली मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए. बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होते हैं बाद में. समझ में आ जाएगा तुम लोगों को अभी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे. I'll use some different color. 3. थर्ड क्वेश्चन क्या है? It's 1 2 3 4 5 minus 1. 1 2 3 4 5 minus 1. What are the operations? Operations which I have to perform is C1 minus 2C2. Then C1 and C2 है ना interchange. C2 and C1. And C3 minus C1. These are the operations. तो फिर changes किस में होंगे? Very first step C1 minus 2C2. तो C1 में changes होंगे 1 minus 2C2 that is -3. 1 minus 2C2 that is -6. C2 as it is, C3 as it is. Any doubt? Next, C2 and C1 interchange. Interchange है ना? तो क्या हो गया फिर ये? C2 and C1 interchange. तो 2 5 यहाँ पे आया, -3 -6 यहाँ पे आया, 3 -1 यहाँ पे आया. अब C3 minus C1. Yes. C1 as it is, C2 as it is, C3 minus C1. 3 minus 2, 1. -1 minus 5 minus 6. C3 minus C1 over. Any doubt to anyone? Yes. कुछ डाउट है? कुछ डाउट हो तो पूछो. Voice is breaking. Am I audible properly? Tell me. Am I audible properly? Okay, Apurva. Apurva, check it on your side. Apurva, where do you stay? रहती कहाँ पे है तू? इतना सारा प्रॉब्लम आता है. अच्छा,
ओके हो सकता है फिर प्लेस की वजह से, क्योंकि अभी तो मतलब नॉर्मली जियो का नेटवर्क जब मैं यूज करती हूँ ना तब कनेक्टिविटी का इशू नहीं आता है जनरली. ओके, so understood the transformations part. Okay, let's look at the questions if we get from the exercise. Let me check it once. Okay. मुश्किल लग रहा, हाँ है ना, yes. 2.5. Okay, 2.5. 2.5 का very first question we are going to solve now. It is easy. Transformation पे based है. Apply the given elementary transformations on each of the following matrices. Okay, so exercise 2.5. Reduce किए है number of exercises as compared to previous syllabus. As compared to previous syllabus, ये जो है reduce किया हुआ है. Okay, let's try it out. First दिया हुआ है 3 - 4 2 2. अप्लाई करना है R1 and R2 interchange. Second 2 4 1 - 5. अप्लाई करना है C1 C2 interchange. थर्ड दिया हुआ है 1 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3. अप्लाई करना है 3R2 एंड C2. देखो अभी इन्होंने ये नोटेशन दिया हुआ है बीच में ही, हाँ अभी तक तो ये फॉलो नहीं हुआ, अभी बीच में ही ये नोटेशन फॉलो किया है. C2 -4C1. ओके, लेट्स ट्राई इट आउट. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आएगा, अभी तक मैंने वैसा कुछ सिखाया नहीं है. ओके, जस्ट वेट, उसके लिए प्रॉपर सीक्वेंस समझना पड़ता है. आई विल टीच यू दैट पार्ट स्टेप बाय स्टेप. ओके, पहले मैं तुम लोगों को उसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सिखाऊंगी, फिर यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, देन हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे. ठीक है, सो डोंट लुक एट सेकंड क्वेश्चन राइट नाउ, ये करना है पहले. इसके ऊपर का थोड़ा बहुत होमवर्क देती हूँ मैं, एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू गेट दैट अपर ट्रायंगुलर वाला पार्ट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिडक्शन. ओके ओके, लुक एट दिस नाउ. R1 R2 इंटरचेंज करना है. इज देयर एनी इशू इन दिस? यस, R1 एंड R2 इंटरचेंज करना है. इज देयर एनी इशू? इजी है. इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? R1 को R2 की जगह पे, R2 को R1 की जगह पे. गॉट दिस? C1 C2 इंटरचेंज करना कुछ बड़ी बात है क्या? C1 को C2 की जगह पे, C2 को C1 की जगह पे. ये C2 है और ये C1 है ना? तो लाओ इसको C1 की जगह पे, इसको लाओ C2 की जगह पे. ओके, नेक्स्ट 3R2. सबसे पहले 3R2 परफॉर्म करेंगे. ओके, 3 1 -1. R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 9 3. R3 as it is -1 1 3. ओके, C2 -4C1. ओके, उन्होंने भले ही यहाँ पे मिक्स दिया है रो एंड कॉलम का, बट एक्चुअली जब हम इसको अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के जो एप्लीकेशंस है वहां पे हम लोग ऐसा यूजुअली नहीं करते. उन्होंने जस्ट एज एन एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है. ओके, बट व्हेनेवर इट कम्स टू एप्लीकेशन पार्ट वी डोंट डू दिस. ओके, C2 -4C1. तो C1 में कोई चेंजेस? नो. C2 -4C1 मतलब 1 - 4 × 3 which is -11.
9 minus 4 into 3, which is how much? Okay. Okay. Doubt क्या है? Let me see. There may be two sub questions because and is given. No. हाँ, ऐसा मतलब हो सकता है, but don't do this. ऐसा जनरली वो करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. टू सब क्वेश्चंस नहीं करेंगे. ओके, एक ही मैट्रिक्स पे दो नहीं करेंगे वो, क्योंकि अभी तक तो नहीं किया उन्होंने वैसा कुछ, है ना. अभी तक तो उन्होंने नहीं दिया है. यस, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस, बिकॉज अभी मेरा अचानक से डिस्कनेक्ट हुआ था इंटरनेट, तो अपूर्वा को अभी थोड़ा सा लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम मेरी साइड में है या आपकी साइड में है. मैं तो ऑडिबल हूँ ना? यस, प्रॉपरली. C2 minus 4C1. 9 minus 4 into 3. 1 minus 4C1, which is 5. Minus 1, 3, 3. Okay. Okay. Any doubt? समझ में आया? टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस तो बहुत आसान रहते हैं, है ना. हम लोग उससे बहुत कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ओके, कुछ होमवर्क के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस ले लो. सी, इस पे मैं ज्यादा फोर्स क्यों कर रही हूँ ना, बिकॉज ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस अगर तुम्हारे मतलब उसमें स्पीड अप तुम लोगों ने नहीं किया, नहीं आता ऐसा तो मैं बोलूंगी ही नहीं. ये सबको आता है, ये सॉल्व करते सबको आता है, टेक्निक सबको पता रहती है, लेकिन स्पीड मैटर्स एंड एक्यूरेसी मैटर्स. ओके, दो चीजों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़े बहुत होमवर्क के क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देती हूँ. तब तक मुझे एक चीज बताओ, अपने मैट्रिसेस के कितने लेक्चर्स हो गए अभी तक? एग्जैक्ट नंबर. यस, टोटल लेक्चर्स कितने हो गए मैट्रिसेस के अभी तक? दिस इज 9th one, right? This current today's lecture is 9th one, है ना. अभी तक की तो हिस्ट्री बताती है कि बोर्ड्स में मतलब जो डाउट आया उसका जवाब मैं दे रही हूँ. जो बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट इज दोज आर एग्जैक्टली सेम एज दोज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज मतलब नॉट इवन नंबर भी चेंज नहीं करते वो लोग. ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता तो नहीं है कि टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ आता है. टुडे इज 10th रिजल्ट्स. 10th के CBSE के थे शायद से आज.
सीबीएसई के थे। ट्वेल्थ का तो यार आज जो बोल रहे थे 15 तक, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। सीबीएसई वालों ने बोला था 15 जुलाई तक हम लोग 10th का भी लगाएंगे, 12th का भी लगाएंगे, लेकिन ये लोग तो, हाँ हाँ आज के नोट्स आज ही सेंड करूंगी। अगर नहीं आते हैं ना तो प्लीज समवन मुझे एक बार रिमाइंड करके दो ग्रुप पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इतने सारे बैचेस है मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। ठीक है, तो इस वजह से तुम लोग क्या करो, मुझे बस एक रिमाइंडर देना। ओके, 9 बजे से पहले मुझे एक रिमाइंडर दिया करो, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे बैचेस है और फिर मैं भूल जाती हूँ ये सब चक्कर में नोट्स भेजना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भेज दिया है, ऐसे हो जाता है वो। ओके, नोटेड डाउन दी होमवर्क। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग मैट्रिक्स को यूनिट या फिर हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। लेट मी चेक इट वंस। तुम लोगों को वो, हाँ है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड हटाया नहीं है उन्होंने, चलो अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा टेक्स्ट बुक ना बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में किया है उन्होंने, ऐसे कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओके चलो, अभी ऐसा कुछ टॉपिक आई डोंट नो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है या नहीं है, बट वाइल टीचिंग आई इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक यूजुअली बिकॉज आगे बढ़ने से पहले इसका प्रैक्टिस होना जरूरी है। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग transforming given matrix into identity matrix. Okay, transforming given matrix into identity matrix. This can be done in two ways. It can be done by row transformations or you can do it by column transformations. Or you can do it by column transformations. Obviously हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं वो 2x2 एंड 3x3 दोनों मैट्रिसेस के लिए देखने वाले हैं, नॉट ओनली 2x2। ऑब्वियसली आज के दिन हम सिर्फ 2x2 देखने वाले हैं, क्योंकि अभी एक्चुअल मैट्रिसेस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, बस हम लोग कुछ ही दूरी पे है उस इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने से। ठीक है, ये एक बार तुम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्जन आ गया, हम सीधा जंप करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, सो ये कंसेप्ट के बाद हमारा एक्चुअल टॉपिक जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वो पिक्चर में आएगा। तो चलो फिर, ट्रांसफॉर्मिंग गिवन मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाउ डू वी डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसीडर 2x2 मैट्रिक्स। ओके, आज 10th लेक्चर है या 9th लेक्चर है, प्लीज मुझे एक बार कंफर्म बताओगे कि मुझे एक्चुअली मुझे लग रहा है 9th लेक्चर होगा आज मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 वीक्स हो गए और एक मेरा हम लोगों ने लेक्चर नहीं लिया था। आई गेस एक लेक्चर हम लोगों ने नहीं लिया था बिकॉज आई वाज नॉट वेल दैट डे, ऐसा कुछ तो। ओके, सो 2x2 मैट्रिक्स, लेट्स टेक इट एज A matrix is equal to 1 2 3 4। अब इस 2x2 मैट्रिक्स को मुझे कन्वर्ट करना है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। हाँ, उन्होंने क्वेश्चन में अपर ट्रायंगुलर बोला है, लेकिन मैं पहले आइडेंटिटी सिखाऊंगी, फिर अपर ट्रायंगुलर का क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? इसको मुझे कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। दिस इज माय टारगेट, दिस इज माय टारगेट। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोगों को एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उसी सीक्वेंस से तुम लोगों को आंसर आएगा, लेकिन अगर तुम वो सीक्वेंस फॉलो करते हो तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो भूल भुलैया रहता है ना, वैसे कुछ होगा नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर तुम लोग सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे और उधर ही उधर घूमते रहोगे, वो प्रॉब्लम होगा। ओके, सो मैं जो बता रही हूँ अभी, उस सीक्वेंस को फॉलो करो। तुम लोगों का जो तुम लोग भटक नहीं जाओगे, मतलब वो सॉल्व करते करते तुम लोग भटक नहीं जाओगे। प्रॉपर एक टेक्निक मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो अभी मुझे आइडेंटिटी में रिड्यूस करना है। व्हाट इज दैट सीक्वेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस एलिमेंट को ऑब्टेन करना है, मतलब इसके जगह पे जो भी है उसको मुझे 1 लाना है। दूसरा स्टेप, इस एलिमेंट को मुझे 0 करना है। इसकी जगह पे जो भी एलिमेंट होगा उसको मुझे 0 करना है। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड टारगेट आई विल से, फर्स्ट टारगेट इज टू मेक द एलिमेंट एट दिस प्लेस एज 1। इस प्लेस पे जो भी एलिमेंट है उसको मुझे क्या करना है? 1। सेकेंड स्टेप इज व्हाट? इस स्टेप पे जो भी, इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको मुझे क्या करना है? 0 करना है। थर्ड स्टेप इज व्हाट? इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको मुझे 1 करना है। देन नेक्स्ट इज व्हाट? इस पे जो भी एलिमेंट है उसको मुझे 0 करना है। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग? दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने बताया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें से ये है रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, उसमें से ये कौन सा है? रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब हम कॉलम वाइज मूव करेंगे। कॉलम में जिधर भी 1 है, मतलब जिधर भी मुझे 1 चाहिए वहां पे पहले मुझे अटैक करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी के जीरोस। फिर मैं शिफ्ट होंगी दूसरे कॉलम पे, दूसरे कॉलम में जिधर भी 1 है उधर मुझे पहले अटैक करना पड़ेगा, उसके बाद जीरोस की तरफ देखेंगे। वही सीक्वेंस कॉलम में कैसे हो जाता है देखो, वही सीक्वेंस कॉलम में कैसे हो जाता है देखो। मान के चलो ए मैट्रिक्स है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो सीक्वेंस कैसा होगा? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोग रो वाइज जाएंगे, रो वाइज जाएंगे। पहला अटैक करना है 1 पे, तो ये एलिमेंट मुझे पहले स्टेप में 1 करना है। दूसरा अटैक रहेगा जीरोस पे, सेकेंड स्टेप में मुझे इस एलिमेंट को 0 करना है। खत्म हो गई रो। सेकेंड रो में पहला अटैक करना है मुझे 1 पे, थर्ड स्टेप में मुझे इसको 0 करना, 1 करना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट अटैक विल बी ऑन दिस एलिमेंट। सो इसी सीक्वेंस में तुम लोगों को एलिमेंट्स में चेंजेस करने हैं। देखो अभी स्टेप बाय स्टेप, लुक एट दिस एंड अंडरस्टैंड दिस। नथिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज एनालिटिकल। ओके, देखो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या बताता है मेरा? फर्स्ट स्टेप, इस एलिमेंट को क्या करना है? मुझे 1 करना है। अरे पर ये तो पहले से ही 1 है, तो मेरा ये काम आसान हो गया, मुझे पहला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस स्टेप को करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, दूसरा, ये जो येलो कलर में मैंने लिखे है ना, ये स्टेप के नंबर्स है। ओके, और जो अंदर है ना, ये अपना टारगेट है।
सेकेंड स्टेप में इस एलिमेंट को 0 करना है, मतलब सेकेंड स्टेप में इस एलिमेंट को 0 करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या था? फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को इसको 1 करना था ना, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को इसको 1 करना था, ये ऑलरेडी 1 है, तो टेंशन ही नहीं। फिर सेकेंड स्टेप क्या बताता है? तुम इसको 0 करो। इसको 0 कैसे करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके। इसको 0 कैसे करेंगे? R2 माइनस 3R1। सेकेंड स्टेप में मुझे इसको 0 करना है। ये नंबर्स को फॉलो करो, ये सीक्वेंस को फॉलो करो। 1 मतलब पहले स्टेप में मुझे यहाँ पे 1 लाना है, 2 मतलब दूसरे स्टेप में मुझे यहाँ पे 0 लाना है। ओके तो मेरा टारगेट क्या है? अभी इसको 0 लाना। मैं कैसे इसको 0 ला सकती हूँ? देखो R2 माइनस 3R1 अगर मैंने किया तो ये आराम से 0 आ जाएगा ना। तो लेट्स चेक इट आउट। A इक्विवेलेंट टू, यस। R1 में कोई चेंजेस? नो। R2 माइनस 3R1, R3, R2 माइनस 3R1 ना, तो 3 माइनस 3R1 दैट इज 1। R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1 है ना। नेक्स्ट R2 माइनस 3R1। तो मैंने बोला ये इंटरमीडिएट स्टेप्स थोड़ा लिखो मत अभी बच्चों की जैसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये हो गया 0। ये क्या हो गया? 4 माइनस 6 विल बी -2। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। विच इज थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप में मुझे इसको 1 करना है। थर्ड स्टेप में मुझे इसको 1 करना है। कैसे भी करो, लेकिन इस 0 को डिस्टर्ब नहीं करना है हमें, इस 1 को डिस्टर्ब नहीं करना है हमें। बाकी तुम कैसे भी करो, 0 0 ही रहना चाहिए, 1 1 ही रहना चाहिए, बाकी तुम कुछ भी करो। ओके तो थर्ड स्टेप में मुझे इसको 1 करना है ना, तो कैसे 1 करेंगे इसको? यस, माइनस 1/2 R2 माइनस 1/2 R2। Why R? Because I am doing row transformations. ओके तो क्या हो जाएगा फिर? R1 as it is, R2 को -12 से मल्टीप्लाई करना है, R2 को -12 से मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? दिस वाज माय थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप कंप्लीटेड। फोर्थ स्टेप में इसको 0 करना है। कैसे करोगे उसको 0? यस एक डाउट आया है, कैन आई डू इट बाय एडिंग -2? नॉट एट ऑल, यू कांट डू इट। तुम लोगों को लगेगा अरे चलो यहाँ पे मैं +3 करता हूँ, +3 करता हूँ, नहीं, एड ऐसे नहीं चलता। देखो ऐसे नहीं चलता है। हाँ तुम ऐसे चेक कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, या फिर ऐसे चेक कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते। सिर्फ नंबर ऐड करना अलाउड नहीं है। यू कैन ऐड दी मल्टीपल्स ऑफ अदर रोज और कॉलम, बट यू कांट ऐड दी नंबर्स। ये अलाउड नहीं, ये ऐसे अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, ये नहीं। ओके रिमेंबर। तो अब क्या होगा फिर? इसको मुझे क्या करना है? 0। 0 कैसे होगा? 0 कैसे होगा? ये 0 कैसे हो सकता है? देखो डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी सी आदत चाहिए तुम लोगों को, आदत के बाद आ जाएगा, डोंट वरी। ओके नेक्स्ट क्लास हमारा इसी में जाने वाला है, पूरा पूरा क्लास इसी में जाने वाला है, तभी जाके मैं इनवर्स में चलूंगी। इसको 0 कैसे करूं? इसको 0 कैसे करूं विदाउट डिस्टर्बिंग 1 0 एंड 1? इसको 0 कैसे करूं? R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2। तो क्या हो गया? R1 में चेंजेस होंगे ना, R2 में तो नहीं होंगे।
तो R1 1 माइनस 2 इंटू 0 1 आया, 2 माइनस 2 इंटू 1, यस 0। समझ में आ रही है ना बात? R1 माइनस 2 इंटू R2 मतलब 0, R1 माइनस 2 इंटू R2, तो ये क्या हो? 1 माइनस 2 इंटू 0, इट वुड बी 1, दिस वुड बी 0। हुआ क्या ये 1 एंड 0 चेंज? नो। मिल गया मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो जरा, मिल गया मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, गॉट इट? ओके, आई गॉट दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग करने वाले हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। जनरली रो ट्रांसफॉर्मेशंस ज्यादा यूज होते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आर नॉट प्रेफरेबल। ओके, जनरली रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज होते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस जनरली यूज नहीं होते हैं। ठीक है, चलो देन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप इसको 1 करना है। ओके, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप इसको 1 करना है ना, तो क्या ये 1 है? यस, ये 1 है, तो मेरा काम खत्म। आई गॉट दिस एज सेकेंड स्टेप। क्या है? इसको 0 करना है। सेकेंड स्टेप में इसको 0 करना है। कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं। कैसे लगाओगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस? C2 माइनस 2C1। टारगेट क्या है? इसको 0 करना है ना सेकंड स्टेप में, तो C2 माइनस 2C1। C1 में कोई चेंजेस? नो। C2 माइनस 2C1, तो ये 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना आया? ये 0 आया। C2 माइनस 2C1, 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2। ओके, सेकेंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप इसको 1 करना है। थर्ड स्टेप इसको 1 करना है। बाय विच ट्रांसफॉर्मेशंस? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। कैसे करोगे? C2 को हाफ माइनस हाफ से मल्टीप्लाई, C2 को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई। ओके, तो C1 में कोई चेंजेस? नो। C2 को मल्टीप्लाई करो माइनस हाफ से, 0 1। फोर्थ, इसको 0 करना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। कैसे करोगे? यस, C1 माइनस 3C2, C1 माइनस 3C2। गेटिंग माई पॉइंट? यस, तो फिर C1 इक्विवेलेंट का साइन भूल गई मैं, याद दिलाओ मुझे। यस, C2 माइनस C1 से भी होगा, ये बोला है रवि ने। C2 माइनस C1 से कैसे होगा रे ये 0? C2 माइनस C1 से कैसे होगा? एंड C2 माइनस C1 करेगा तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये -1 नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा ना, है ना? तो कैसे चलेगा फिर? ओके, तो मुझे इसको 0 करना है, तो C1 माइनस 3C2 करना पड़ेगा। जो हमने एलिमेंट्स लाए हैं ना, उनको जनरली डिस्टर्ब नहीं करना है। अपने एफर्ट से हम उनको लाते हैं और हम लोगों को डिस्टर्ब करके कैसे चलेगा, है ना? C1 माइनस 3C2, तो C1 में चेंजेस करेंगे, -3 इंटू 0, तो क्या हो गया? ये 1 आया। ये क्या हो गया? C1 3 माइनस 3 इंटू C2 0 हो गया। ये क्या है? 0। ये क्या है? 1। C2 का बोल रहा है 2 को 1 करने के लिए, 2 को इसको 1 कर रहा है, तो इसको 1 करने के लिए C2 प्लस C1 करने की सोच रहा है क्या? लेकिन C2 प्लस C1 करेगा तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा ना रे रवि, ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 आएगा। फिर C2 प्लस C1 करेगा तो 0 प्लस 1 करेगा तो यहाँ पे 1 होगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? हम इतना एफर्ट से हमने उसको 0 किया और हम फिर से उसको नेक्स्ट स्टेप में 1 करेंगे तो फिर कैसे चलेगा?
है ना। तो इसीलिए यही भूल भुलैया, यही तो भूल भुलैया है। ओके, इसीलिए तो हम लोग नहीं कर रहे वैसा। ठीक है, एक काम करो, एक क्वेश्चन ट्राई करना घर पे 2x2 मैट्रिक्स का। अभी तो 3x3 मैट्रिक्स आने वाला है। 3x3 मैट्रिक्स का सीक्वेंस तो और भी अलग है। तो तुम लोग पहले 2x2 मैट्रिक्स को एक बार घर पे कोशिश करो। ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं हमारे अराउंड, मतलब नेक्स्ट क्लास तो पूरा उसी में जाएगा ऐसे मान के चलो। ठीक है।